all those souls who were rebellious, hmm, they had to go through that journey. So, so then the Lord gives various opportunities for us by introducing these special months. So this special month of Kartik or special month of Damodar is like a bumper offer. Hmm? अभी जैसे ये क्या हो रहा है अभी थैंक्स गिविंग सेल, गुड फ्राइडे सेल, सो क्या वो ब्लैक फ्राइडे ब्लू फ्राइडे वट एवर, तो ऑल दो सेल्स, हाँ. तो ऐसा ही कार्तिक फुल 1 month लॉर्ड हैज गिवन यू to set right various things by doing certain important things in this auspicious month. So ये 5th November को there is this Go Puja. So sorry, this screenshot is not that great. It's in the Hare Krishna Valley. तो आपको outing चाहिए तो best outing है. You can go there with your kids and then you can participate in the cow puja. How many of you have attended Go Puja in your life? Forget in this Hare Krishna Valley. ऐसे ही गो पूजा, गैयों की पूजा बहुत कम हाथ ऊपर है ना, कि where you have a cow. Earlier in our during the ancient times in our house only, village only, we had cow, and then in every household there was a cow, and then we used to do go puja. So automatically people used to get that ticket. Now we don't have that facility. Now for if you ask our small kids where does milk come from, they will say cold से आता है, मूली से आता है milk, है ना? They have never seen the cow being milked. So good opportunity. Obviously there is a ticket here and all, so make sure you make most of this opportunity. Okay. Again, so this holy month of Damodar is going on, and you can conduct this kind of a program in your house too. And we have people in the temple who you can liaise with and contact them if you want to get this program done. I think a few of our group members are doing it in their house. Okay. So if you need a contact number of whom to contact, then you can contact Harsh or Gaurav. They can tell you who to contact in the temple to arrange for a similar program in your house. Okay. So the way we do this program in Manda, this way. Obviously today we are doing it in Border, but generally our main program name is Manda because we do it every week in Manda. Similarly, there is another program going on in Kregiban, okay? But that program is much more older. We started like 6 months back. That program is around 2 years old now, okay? So the main leader of that program has organized a Diwali event on November 12th. It is next Sunday. Not coming Sunday, next Sunday, November 12th. So we all are invited there to participate, and you can distribute this flyer amongst all the near and dear ones here, so that we can all participate in this Diwali program and come together and celebrate Diwali here. Okay, so on Sunday from 12 to 5 it is there. Okay, now. So there are new people who can go there as guests, and then some of us can go there as volunteers and contribute by doing some सेवा. Important है कार्तिक मंथ में हम सेवा करें. तो सेवा में क्या क्या है? इतनी सारे सेवा के opportunities हैं. तो इसमें से कुछ ना कुछ आप पकड़ सकते हैं, और वो जो पीछे नंबर दिया है यहाँ पे, इसको फोन करके विकास या विभोर, श्री राम प्रभु, इनको फोन करके हम बता सकते हैं. या तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी एंड देन आई कैन हेल्प यू टू फिगर आउट. इवन इफ यू कैन डू फॉर 1 hour एनी सेवा लाइक फूड डिस्ट्रीब्यूशन है. इफ यू आर गुड इन फेस पेंटिंग देन यू कैन हेल्प इन फेस पेंटिंग. ऐसे पानी पूरी टेबल है, इतने टाइम से पानी पूरी खा रहे, अभी पानी पूरी डिस्ट्रीब्यूट करो. शूज मैनेजमेंट है, डू सो मेनी स्मॉल थिंग्स. सो आई थिंक वी ऑल ऑफ अस शुड टेक सम और द अदर सेवा and help to make this event successful. Till now we have been on the other side. We have always gone as guests in the event, but now be on the organizer side. This is a great opportunity for all of you to be on the organizing side without having to take any stress of what's going to happen. Somebody else is taking the stress. We just have to come there and serve and then go back home getting the benefits of Kartik. So please participate in this and come back to me after this program so that we can decide how we can make this program successful. Okay.
So last week, as we discussed, this is the most holy month of Kartik, and on the first day of Kartik, when it started on Sunday morning, I was very pleasantly surprised that many of us were there for Mangal Aarti, and they made a great start. Mangal Aarti में 4:30 बजे आना मंदिर में सुबह कार्तिक के समय भगवान को पहले पहले देखना ऐसे 4:30 बजे, बहुत उसके लिए मेहनत लगती है क्योंकि आपको सोना पड़ता है जल्दी, फिर 3 बजे उठोगे, नहाओगे धोगे और फिर मंडा से ड्राइव करके वहाँ आओगे. So many of us came there, and that shows the determination, the love that you have for the Lord. भगवान को प्रेम जताना है, भगवान को बताना है कि हम भी है, तो हमें कुछ हट के करना चाहिए. So to take that pain to come to the temple is a big thing. So अगर आप नहीं आए हो तो अभी भी और 20-25 दिन है कार्तिक में. You can still come any one day, at least you can come. भगवान से बोलो कि एक दिन भगवान आपके लिए एक दिन तो मैं उठूंगा. अगर कल को कोई बोलता है tomorrow somebody says कि boss, if you get up tomorrow, if you report at 4 o'clock tomorrow at the Melbourne CBD, you will get $5,000 lottery. I'm sure many people will stand in the queue from night only. अभी भगवान के लिए कुछ करना चाहिए ना, so we should do it. एक बार तो आओ, वो कष्ट लो जिंदगी में. All right. So in this holy month, various things happened. बहुत सारे चीजें हुई in this holy month, and one of them is the दामोदर लीला. इस मंथ का नाम क्या है? दामोदर भी है, कार्तिक भी है, दामोदर भी है. तो ऐसी दामोदर लीला हुई, तो उस दामोदर लीला के बारे में आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ एग्जैक्टली 5500 साल पहले. What happened approximately 5,500 years back. So we all know Hare Krishna. So we all know that अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग. कृष्णा came in द्वापर युग. कलयुग स्टार्ट होके approximately 5,000 plus years कुछ हुए हैं. So when Krishna left, द्वापर युग ended, and it was the beginning of Kalyug. And that is what Srimad Bhagavatam mentions. So when Krishna was there, it was Dwapar Yuga, and Krishna came all the way from Goloka Vrindavan to the Bhumi Vrindavan, the Vrindavan here. Yes. So when Krishna came, Krishna के mother father कौन है? देवकी and वासुदेव. और फिर नंद बाबा और यशोदा माँ भी है ना. देवकी के तो घर में आए, बट इवेंचुअली शिफ्ट हो गए नंद बाबा और यशोदा माँ के घर में. तो उनका मेजर जो है चाइल्डहुड पास टाइम ऑल हैपेंड विथ नंद बाबा एंड यशोदा माँ. सो विल सी सम फोटोज हियर सो दैट वी कैन ऑल इमेजिन, बिकॉज इसमें भी इमेजिन करना पड़ेगा आपको कि 5,500 ईयर्स पहले कैसे था सब कुछ. कि व्हाट यूज्ड टू हैपन, हाउ कृष्णा द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग इज इन हिज बाल रूप फॉर्म, एक नन्हे से बालक रूप में है, और कैसे वृंदावन में अपनी लीलाएं कर रहे हैं. So when we see all of these photos, then we can just imagine, and that is what this Damodar Leela is all about. नंद बाबा कौन थे? नंद बाबा राजा थे. He was the king. So of all the Gopas, उनका मेन काम क्या था? He was a वैश्य, वैश्य के राजा है ना. तो अगर आपको दिख नहीं रहा है माता जी, then you can sit at the back, then you can see properly. But if आप दोनों को अपने एक ही चाहिए, if you can see it, that's okay. So वैश्य किंग थे. किंग मतलब he had lots and lots of cows. बहुत सारी गैयां थी उनके पास. तो उनका मेन बिजनेस क्या था? गो चराना, गोचर है ना. काउ हर्ड, काउ हर्डिंग वाज द मेन बिजनेस ऑफ हु? नंद बाबा. नंद बाबा का ये काउ हर्डिंग मेन बिजनेस था. एंड कृष्णा हैज टेकन बर्थ इन नंद बाबा हाउस होल्ड. तो उस कृष्णा इज ऑल्सो कावड़ बॉय. उनका कृष्णा का मेन बिजनेस क्या है? गोचर है. वो कहाँ रहते कृष्णा? हमने देखा था ना वो गोलोका का मैप में. कृष्णा स्टेज इन अ प्लेस कॉल्ड स्पिरिचुअल में गोलोका वृंदावन. गो मतलब काउ, लोक मतलब अ प्लेस, गैयों का घर.
वहाँ कृष्णा रहते हैं। तो कृष्णा कौन है? काउहर्ड बॉय है। उनका मेन बिजनेस इज staying around with the cows. And that is why in the holy land of Bharat, cows have the maximum importance. बहुत ज़्यादा importance है. And I remember a story wherein बीरबल किसके यहाँ पे काम करते थे? अकबर. So Akbar was generally debating with somebody. Okay, there was a debate going on. Who is the animal who gives best milk? And there were various opinions. And then it came to Birbal. And then Birbal said the animal that gives the best milk is a buffalo. And all others were saying cow. And then Akbar asked Birbal to prove it. And then Birbal said that cow is not an animal. Cow is mother. बाकी सब एनिमल्स है, बट गो माता है ना? तो काउ इज नॉट एन एनिमल. सो ऑल एनिमल्स लाइक बफेलो कैन गिव अ गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क. बट बफेलो के बछड़े को भी देखा है आपने? व्हाट हैपेंस व्हेन अ बफेलो गिव्स बछड़ा? अगर वो बछड़े को लेके भी जाते हैं, बफेलो को कोई फर्क पड़ता है? कुछ नहीं. कंप्लीटली डिटैच बोल नहीं सकते. डिटैच इज अ वेरी गुड वर्ड to be used for from a spiritual perspective, but buffalo की माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता. There is no attachment with the child so as to speak. But take a बछड़ा away from the cow and see what the cow will do. को मार डालेगी, है ना? तो गो माता में वो स्पेशल पावर है, वो स्पेशल चीज है. And that is why cows are very important integral part of our Sanatan Dharma. So when we are here to we have to keep that connection with the cow, and especially also explain our children the importance of go seva, cow seva. इसलिए जब भी चरणामृत बनता है या कोई भी इम्पोर्टेंट पूजा होती है तो 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो सारे काव से आते हैं. कौन से हैं वो? पहले दूध, फिर दूध से दही बनता है, घी बनता है, फिर और 2 चीजें. हनी काव से नहीं आता. काव से जो आते हैं 3 चीजें, दूध, दही, मक्खन का, हाँ, काउ डंग एंड काउ यूरिन, गोमूत्र. ये 5 चीजें जब भी कोई भी हवन करना हो तो 5 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स आर रिटन इन द शास्त्र. ये नहीं होगा तो आपका हवन नहीं होगा. तो इट इज इम्पोर्टेंट, राइट? ऐसे. सो जो अपने नंद बाबा थे, नंद बाबा जो थे, he was the king of Raja, and then he had, ऐसा बोलते कि 900,000 प्लस काउस, स्पेशल काउस, सारे इतने सारे काउस. एंड कृष्णा सिंस द वेरी अर्ली चाइल्डहुड ही यूज्ड टू हर्ड काउस. बट कृष्णा छोटे थे ना, तो उनको काउ हर्डिंग के लिए छोटे छोटे बछड़े दिए थे. बछड़े ही वाज हर्डिंग. So now there will be a festival that will come. It will call the festival Gopashtami. Okay. So Gopashtami में Krishna graduated. He was given the opportunity to herd full-size cows. So you will learn this only when you read Shri Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam. That is when you can get to know these details. तो ऐसे कृष्णा ये वृंदावन में ऐसे खेल रहे हैं, और ये सारी जो गोपियां हैं, इसमें से यशोदा माँ और उनके एज ग्रुप की भी सारी गोपियां हैं. सो काउज आर द मेन पार्ट ऑफ दिस थिंग. और जो पास्ट टाइम भी दिवाली का हुआ वो काउ से ही हुआ, बिकॉज कृष्णा लव्ड बटर, माखन चोर नाम है ना कृष्णा का. तो काउ के बारे में इतना क्यों पता है? क्योंकि कृष्णा गोलोका में है, वो माखन ही खाते हैं. सबसे बेस्ट चीज उनको जो लगती है वो माखन है. अच्छा, अभी वीगन हम बन रहे हैं और वो सब अलग चीज है. विल पार्क दैट थिंग असाइड फॉर नाउ. तो कृष्णा को सबसे अच्छा क्या लगता है? माखन. तो सारे व्रज में मेन काम क्या है? दूध निकालना गोपियों का. जो मेन है दे विल गो फॉर काउ हर्डिंग. द वुमेन इन द हाउस विल मैनेज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. और सबसे बिगेस्ट प्रोडक्ट इज मक्खन. तो मक्खन निकाल के फिर देन दे विल गो टू मथुरा एंड अदर सराउंडिंग विलेजेस टू सेल. करेक्ट. तो हर घर में मक्खन होता था. नाउ कृष्णा इज द लॉर्ड ऑफ द गोपीज. So what Krishna does is, everyone in that village
wants to see Krishna. Okay? So Krishna is so attractive even as a baby child. ऐसा नहीं जैसे हम हमारे घर में बैठे कि आजू बाजू वाले नेबर को पता ही नहीं घर में कौन है, उधर सबको सब पता है. तो everyone loved Krishna. Obviously he is the Lord of Lord. तो सबको इच्छा है कि कृष्णा हमारे घर में आके कुछ करे, हमारे घर में आके माखन चोरी करे, हमारे घर का माखन खाए. एंड देन कृष्णा रेसिप्रोकेट्स. सो ही गोज टू एवरी हाउस और माखन चोरी करके खाते थे. और कैसे खाते थे वहां पे? पुराने जमाने में माखन को ऊपर ऐसे सीलिंग ऐसे कंक्रीट की नहीं होती थी ना, लकड़ों की सीलिंग होती थी. राफ्टर्स दे यूज्ड टू कॉल एंड द पॉट दे यूज्ड टू कीप अप ऑन द राफ्टर्स. ओके, ऐसे. And then Krishna used to visit from house to house along with his various Gopa friends, and they used to steal makhan from every house. Okay? And that is how that Dahi Kala festival came. Dahi Kala में Mumbai और side में, then they create pyramids now. But the origin is from here. It was not like 7-tier pyramids the way they do it now. It was like just two small. Krishna was very small there. So that is how that pyramid thing started coming. And you see at the bottom, what is at the bottom most thing? क्या बोलते हैं? उखल बोलते हैं उसको, है ना? उखल. वो उखल भी part of the scene है. So Krishna used to do this, and then all the gopis, then they had to again see Krishna. तो वो यशोदा के घर में आते थे और यशोदा को कंप्लेन करते थे कि तुम्हारे लाला ने मेरे घर से माखन चुराया. And Yashoda is like, तुम्हारे घर से क्यों चुराएगा मेरा बेटा? मेरे घर में इतने सारी गैया हैं, मैं भी घर में बनाती हूँ. Why do you think this way? तो ऐसे उनका कॉन्वर्सेशन होता था. एंड देन सो मेनी गोपीज यूज्ड टू कम. तो यशोदा बोलती थी कि अच्छा इतने सारे गोपीज आए हैं, मतलब कुछ तो होगा करके. So then she used to call Krishna. कृष्णा तुमने माखन चुराया? What did you do? And then Krishna says, नहीं मैंने तो नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूँ, तुम लोग चोर हो. कृष्णा जब भी बोलते तुम लोग चोर हो, इसका मतलब क्या? वी आर रियल थिंग्स. कृष्णा ओन्स एवरीथिंग. हम तो ऑक्सीजन ले रहे, कृष्णा का ले रहे हैं. हम लाइट ले रहे हैं फ्री में, सूर्य देवता वो भी कृष्णा के अंदर है. तो वी आर यूजिंग एवरीथिंग फॉर फ्री. हम कुछ कर रहे हैं यज्ञ वगैरह वापस देने के लिए नहीं. तो एक तरह से हम चोरी है. सो कृष्णा इन हिज अर्ली डेज, सी how he is, these things are given in the Srimad Bhagavatam and in the various pastimes, that Krishna used to carry Nanda Baba's chappal on his head to give it to him. The topmost of everyone, the topmost Lord is now an obedient child, acting in the role of an obedient child. क्यों? क्योंकि कृष्णा भावग्रही है. जब भी हम कृष्ण को प्रेम करते हैं और हम जब भी मुक्ति मांगते हैं तो कृष्ण देते ले लो, लेकिन भक्ति मांगते हैं तो कृष्ण ने भक्ति ले लो. क्यों? क्योंकि ये भक्त कौन है? नंद बाबा है. भक्त कौन है यहाँ पे? यशोदा माँ. अगर कृष्णा भक्त, अगर ये भक्त बन जाए ना कृष्ण का, तो कृष्ण को यू कैन कंट्रोल कृष्ण, एंड देन दैट इज समथिंग वेरी 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 रेयर. तो कृष्ण बोलते मेरा कंट्रोल मैं इतनी इजीली से नहीं दूंगा, आप मुक्ति ले लो, भक्ति मत मांगो. तो समटाइम when we are new in Krishna consciousness, हमें क्या होता है कि इस जगत से छूट जाए, हमें मुक्ति मिल जाए. बट एज एंड हाउ वी प्रोग्रेस इन अवर साधना, धीरे धीरे, जैसे आप वृंदावन जाएंगे, वहाँ पे कितने सारे बाबा जी हैं जो कंटिन्यूस नाम जप करते रहते हैं. उनको मुक्ति नहीं चाहिए, उनको भक्ति चाहिए. सबसे जो अभी मेन महाराज कौन है? प्रेमानंद महाराज. When you hear his thing, what he is all the time talking about, he wants भक्ति. भक्ति है तभी तो वो स्वीटनेस आ रहा है ना. मुक्ति इज अ मैकेनिकल थिंग. if you do some certain things, मुक्ति ऐसे ही मिल जाएगी, इस जीवन से छूट जाओगे. बट भक्ति चाहिए. we want loving reciprocation. we all want loving reciprocation. जैसे हम लोग सब मिल रहे हैं ना, यहाँ पे एक लव है ना हम लोग एक दूसरे में, कि कोई सुबह से कोई काम कर रहा है, सुबह से कोई सब्जी बना रहा है, कोई सुबह से घर साफ कर रहा है. क्यों कर रहा है? बिकॉज देयर इज लव फॉर यू, दैट ऑल द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर गोइंग टू कम. So that connection can happen only through bhakti, and bhakti happens between person to person. It can't happen between a person and a light. If I ask you, ब्रह्म ज्योति है, इसको देखते रहो और विलीन हो जाओ, कितना टाइम देखोगे आप इस बल्ब को, लाइट को? It's very difficult. Try to understand. Use your
नॉट इजीली अवेलेबल कॉमन सेंस कि लाइट को देख के कैसे प्यार आएगा. मेनी पीपल डू लॉट ऑफ मेडिटेशन, आके एकदम ऐसे कड़क इसमें बैठते, थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे ऐसे ऐसे हो जाता है. और अगर घर में मेडिटेशन कर रहे हो तो कुकर की सीटी बजते हो, राजमा का भी स्मेल आता है, सब गया फिर. So meditation is not possible in Kali Yuga. It was possible in the earlier yugas where people had special bodies. उसके लिए वैसे वो एक एटमॉस्फेयर भी था. But in Kali Yuga, meditation is not possible. All that is possible, very practical for grihasthas like us, is doing the japa. What will happen when we do that japa? हमने जो भी नाम जप किया उससे क्या होता है जपा से? It purifies our heart and it reignites that bhakti within our heart. That is why japa is most important. बहुत लोग बोलते हमें हम करते रहते मन में है, ऐसा नहीं. जपा आपको एक जगह बैठना पड़ेगा और हाथ में माला लेनी पड़ेगी. ये किसने किया है? हमने थोड़ी रूल इन्वेंट किया है. ये तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे सारे जो गुरुज है वो सब ने किया है, ऐसे ही किया है. एक जगह पर बैठ के स्थिर होके मंत्र जप करते हैं. एक माला लेके करना चाहिए कंटिन्यूस. और जब भी माला छोड़ दी फिर कंटिन्यूस वैसे ही कर सकते हैं. बट एक फिक्स नंबर ऑफ सेट, आपने जो भी प्रण लिया है कि हम 5 राउंड करेंगे, तो वो बैठ के करना चाहिए एक जगह पे, तो ही वो प्रेम जागृत होगा अंदर से. नहीं तो ऐसे जिंदगियां बीत जाएगी आवक जावक में. अच्छा, सो कृष्ण इस भक्ति मिलना मुश्किल है. बट देखो ये नंद बाबा और यशोदा माँ, इनको कृष्ण इनकी सेवा कर रहे हैं ऐसे. और अनेक गोपा सखा है कृष्णा के साथ, तो ऐसे बंदर भी है उसके अंदर. तो इन कृष्णा कम्स, ही कम्स अलोंग विद हिज एंटूरेज. ऐसे बोलते हैं कि हमें हमारे आचार्य समझाते हैं कि देयर आर सो मेनी ऑफ मिलियंस ऑफ डेमीगॉड्स ना, 31 करोड़ के देवी देवता है. तो डेमीगॉड्स ऑल्सो कम अलोंग व्हेन दे नो कि कृष्णा आ रहे हैं. तो डेमीगॉड ऑल्सो कम एंड दे टेक वेरियस रोल्स. तो इसमें बंदर भी काफी डेमीगॉड्स है. जैसे प्रभु श्री रामचंद्र के वक्त भी बंदर थे, कृष्ण के लीला में भी बंदर थे. भगवान अलग अलग रूप में आते हैं और उनके साथ उनके खास सखाओं को लेके आते हैं. तो ऐसे कृष्णा फिर हर घर घर में जाके व्रज के इसमें चोरी करते थे. तो यशोदा माँ को फिर ऐसे लगा कि ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि ये जो सभी घर में जो मेरे सर्वेंट्स है जो ये माखन कर रहे हैं वो ठीक से नहीं कर रहे होंगे. तो वन डे शी डिसाइडेड कि मैं खुद करूंगी आज. एंड सो माखन पुराने जमाने में कैसे करते थे, देखिए कितनी स्वीट काउज है ना. दीज आर ऑल द फ्रॉम द समुद्र मंथन. विच काउ के? सुरभि. सुरभि कामधेनु. Okay. So Surabhi cow and the Kamdhenu cow, they're all the vanshaj from that Kamdhenu cow. Okay. So this cows, that Surabhi cow also, if you see their ears are very big and they have a hump at the back. Okay. And they have this big mane under the क्या बोलते हैं, माउथ ऐसा गले की तरफ से ना बहुत बड़ा हैंगिंग ऐसा होता है वो. So when you go to Gujarat side, you will see those real cows. Very गीर cows, yes, गीर cows. बहुत ही प्रेम भरी होती है वो ऐसे. तो कृष्ण एंड बलराम इसमें भक्त वत्सल, ऐसे लाखों गैया. कृष्ण जब भी वृंदावन में ऐसे जाते थे और जब भी वापस शाम को आते थे ना, तो दूर से ऐसी धूल दिखती थी. कोई अभी दिख नहीं रहा है होराइजन में, इतनी लाखों गैया चल रही है, दूर से धूल दिख रही है. धीरे 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 फिर उस धूल में कृष्ण आगे है और बलराम उनके साथ, और पीछे लाखों गैया आ रही है. कैन यू जस्ट इमेजिन दैट इन हैपनिंग इन वृंदावन. सो यशोदा माँ ने एक बार डिसाइड किया, ओके आई एम गोइंग टू माई सेल्फ मेक मिल्क, मेक दैट मक्खन. ओके. तो यशोदा माँ के पास जैसे 900,000 काउस थे, उनमें से है ना 9 या 10 वर पद्मगंधा काउस. पद्मा मीन्स लोटस, गंधा मीन्स सेंट. पद्मगंधा मीन्स दोज आर स्पेशल काउस. तो उसको यशोदा माँ है ना उनको स्पेशल ग्रास खिलाती थी. जैसे भी ग्रास होता है ना, ग्रीन ग्रास, उस ग्रास के भी अलग अलग क्वालिटीज थे तभी. तो उनको सेंटेड ग्रास खिलाती थी. एंड व्हेन द काउस यूज्ड टू ईट दैट सेंटेड ग्रास, द मिल्क वाज आल्सो फ्रेग्रेंट. When you go from different villages, now if you drink raw milk, you can figure out what this tastes different. Okay.
it depends on the environment there and what food and fodder the cows are eating. Okay, so there are these 9 or 10 special Padmagandha cows which were only given that Padmagandha grass by Yashodama, and their milk was used to create special butter for Krishna. Okay, so Yashodama was boiling once upon a time. She was actually working on this, and she was boiling this milk. बटर कैसे करते हैं पुराने जमाने में, क्या बोलते हैं इसको हाँ मथानी, ऐसे करके है ना, they used to do that butter. Fantastic way of doing butter. And when you actually look inside that pot, then you will see after some time that पानी छाछ अलग हो जाता है और मक्खन ऐसे अलग हो जाता है. When you put your hand inside and you get that मक्खन soft and very creamy, that is real मक्खन, not a कोल्ड का डब्बा खोल के वो ऐसे. तो मजा, वो मक्खन के साथ पराठा खाओ, आहा मजा आवे. So ऐसे मक्खन करके शी वॉज डूइंग इट. उन्होंने काफी ऐसे मक्खन वगैरह करके है ना ऐसे सब स्टोर करके रखा था. और उस दिन स्पेशल कृष्णा को उन्होंने वो दूध बॉईल करने के लिए रखा था. और शी वॉज वर्किंग एंड देन कृष्णा केम. कृष्णा वॉज स्लीपिंग इन द नेक्स्ट रूम, बेबी कृष्णा, एंड ही केम एंड ही कॉट होल्ड ऑफ यशोदा. ही एक्चुअली कॉट होल्ड ऑफ दैट रॉड. बोला बंद करो और मुझे अभी दूध पीना है, मुझे अभी दूध पीना है. And then Yashoda Ma she started feeding Krishna milk. अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था हमने, दूध गैस पे गर्म करने को रखा था चूल्हे पे. So she was feeding Krishna and then she heard that noise and then she said, अरे चूल्हे पे जो मिल्क है वो गिर रहा है, वो उबल के बाहर आ रहा है. अभी किसका मिल्क? वो पद्मगंधा का मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका. So what did Yashoda Ma do? Now she had the lord of this entire universe in her hand, but for her she doesn't know that he is the lord. तो भक्त वत्सल में है. तो क्या किया उन्होंने, कृष्णा को दूध पिलाते पिलाते नीचे रख दिया. तो किसी भी बेबी को कोई जो डीप इसमें कोई माँ ही जाने कि कोई बेबी मिल्क पी रहा है और उसको ऐसे ही बाजू में निकाली तो व्हाट विल द बेबी डू. इसको थोड़ा जिंदा करो वापस हर्ष प्रभु. तो व्हाट विल द बेबी डू. टीवी को ऑन करा. हाँ क्राई मतलब कि ऐसा शॉर्ट क्राई नहीं. They will actually throw huge tantrums and Krishna also did the same. कि मुझे नीचे रख दिया, मैं पी रहा हूँ दूध और इतना क्या इम्पोर्टेंट था, है ना, इतना क्या इम्पोर्टेंट था कि मुझे छोड़ के ये किया उन्होंने. So Acharya explained that for Yashoda at that time the makhan was more important. उनको था कि ये दूध से मैं अच्छा मक्खन निकालूंगी और वो कृष्णा को ही देना है, तो मैं जाके चूल्हा बंद करके आती हूँ, है ना. So that is what she did and she was attending to that chula and then Krishna here became very very angry. और उन्होंने क्या किया फिर कि चलो उसमें पॉट्स रखे थे वहाँ पे दूसरे माखन के, तो उन्होंने सारे पॉट पत्थर ले लिया और तोड़ दिया. इतना हाई क्वालिटी मिल्क के जो माखन के वो सारे पॉट्स तोड़ के सब माखन जमीन पे. और चल के फिर दूसरे रूम में गए. दूसरे रूम में और भी ऊपर भी कुछ रखा था, उसको भी तोड़ा और अपने फ्रेंड्स को बुलाया. कृष्णा के फ्रेंड्स कौन है, गोपाल है, बट उस समय गोपाल नहीं आए थे. उन्होंने सारे बंदरों को बुलाया, सारे मंकीज को बुलाया और अपने हाथ से माखन खिलाया. आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि जो सारे देवी देवता जो मतलब उन बंदर के रूप में आए थे उन सबको उन्होंने खुद अपने हाथ से खिलाया सारा माखन. सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड कि सारे पॉट्स तोड़ दिए और माखन बंदरों को खिला दिया. और बालकनी के ऐसे साइड में ऐसे बैठे थे. एंड देन यशोदा शी केम, मदर यशोदा केम बैक एंड शी सेड कहाँ गए कृष्णा. तो वापस दूध पिलाते हैं उसको, तो कहाँ पे है. एंड देन शी सीज एवरीवेयर, तो माखन सारा है. और वहाँ पे उसने देखा कि माखन के छोटे छोटे पैर के निशान दूसरे रूम में जा रहे हैं. तो उनको फॉलो करते करते शी वेंट इन दैट नेक्स्ट रूम एंड व्हाट डज शी सी. शी सीज कृष्णा इज फीडिंग मक्खन टू ऑल द monkeys. And she became very angry. Very, very angry she became. And the moment Krishna saw Mother Yashoda, he was terrified. डर गए थे, मतलब रियलिटी में डर गए थे कि ऐसा नहीं नाटक कर रहे थे भगवान, रियलिटी में डर के भागे. And then it is said that Yashoda, when Krishna was born to her, or Krishna came into her life, she was not a young lady, which 75-80s में थी.
at that time. Yeah. She was a very elderly cowherd woman. She was not a teenage girl or something, young girl. Nanda Baba or Yashoda Ma. She was very elderly गोपी. तो उस समय वो भागे कृष्णा के पीछे और कृष्णा आगे भाग रहे हैं और यशोदा उनके पीछे भाग रहे और कृष्णा टेरिफाइड है, डर गए हुए और ऐसे काफी देर भागे और यशोदा ने इवेंचुअली पकड़ लिया कृष्णा. Now if Krishna wants, Krishna can keep on running, but कृष्णा फिर भाग रही है, भक्तवत्सल है, तो उन्होंने अपनी माँ को अपना समर्पण कर दिया और यशोदा ने फिर उनको बड़ा डांटा. कृष्ण बोला मैं नहीं करूँगा, फिर से आई एम सॉरी मैं नहीं करूँगा. बोले नहीं, मुझे तेरे भरोसा ही नहीं है. और उन्होंने फिर जो उखल था, बोले ये उखल भी तेरे इस लीला में शामिल है ना, उखल के साथ तेरे को बांध देती हूँ. और उसको उखल के साथ यशोदा ने बांध दिया कृष्ण को. तो बांध रही है उनको, उखल के साथ बांध रही है. बांधने के लिए उन्होंने कुछ रस्सियां ली वहां से. अभी एक लीला हो रही थी वहां पे, रस्सियां से फोल्ड करके गोल गोल करके बांधने जाए, जब गांठ बांधने जाए तो हर बार 2 उंगली कम पड़े. So when Yashoda was trying to tie Krishna to that, what do we call that in English? To that mortar, to that mortar. Then every time the rope was 2 fingers short. That was Krishna's leela. Krishna did not allow her to tie the final knot. बांधने दिया नहीं. So then Yashoda used to call कि अरे भाई कोई तुम्हारी रस्सी दो, तुम तुम्हारी रस्सी दो. तो सारा गांव इकट्ठा हो गया धीरे धीरे कि कृष्णा को बांध रहे हैं. और ये तो ऐसे काफी गोपियां भी आ गई फिर वहां पे. बलराम भी पीछे से देख रहे और कृष्णा को फिर इवेंचुअली के मतलब कोशिश करे और हर बार 2 उंगली शॉर्ट. ऐसे बताते आते लेकिन कि श्रीमती राधा रानी also came there from Sober and Son. She also passed her chundri. That chundri when it came, then it got tied. That is one katha that we hear. A second katha is also that Krishna eventually, when she saw Yashoda getting so tired, when he saw कि माँ इतनी थक रही है, then he allowed himself to be binded. और बांध के वो फिर अपने काम पे चली गई. तो ये जो उखल है, हमने लास्ट टाइम हमने देखा था ना, वो वृंदावन में कहाँ पे उखल है, वो वीडियो हमने देखा था. इट इज स्टिल देयर. इफ यू गो टू वृंदावन देन यू कैन सी दैट उखल. तो ऐसे बांध के चले गए. अभी कृष्ण कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट श्लोका है भगवद गीता में, जब भी वो महाभारत का B.R. चोपड़ा का महाभारत का टाइटल सॉन्ग वो भी है. और दूसरा भी था एक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन हो गया कि आई कम इन दिस वर्ल्ड एवरी मिलेनियम. हर युग में मैं आता हूँ. क्यों आता हूँ? परित्राणाय साधूनां, मतलब मेरे जो भक्त है उनको मिलने आता हूँ. विनाशाय च दुष्कृतां, विनाशाय च दुष्कृतां मतलब टू एनिलेट, दुष्टों का नाश करने के लिए. एक तो भक्तों से मिलने के लिए, एक दुष्टों का नाश करने के लिए. धर्म संस्थापनार्थ है, टू रीस्टैब्लिश रिलीजन, रीस्टैब्लिश धर्म. धर्म मतलब क्या? सनातन धर्म, द इटर्नल रिलीजन विच वी ऑल बिलोंग टू. तो भगवान ऐसे करके आते हैं. तो इसमें अभी फर्स्ट रोल तो उन्होंने किया भक्त वात्सल्य, बट अभी उनको और कृष्ण को फिर एक लीला याद आ गई कि मेरा और एक काम बाकी है. एक भक्त ने मेरे लिए एक प्रॉमिस किया था, वो मैं अभी करूंगा. तो कृष्णा इज, इमेजिन दिस नाउ, कृष्णा इज इन द बैकयार्ड ऑफ नंद भवन. नंद बाबा के पैलेस के बैकयार्ड में है, बहुत बड़े बड़े पेड़ है वहां पे, और उसमें से इज फोकसिंग ऑन 2 बिग ट्रीज बैकयार्ड में. तो कृष्णा किससे बंधे हुए? उखल से बंधे हुए. ऐसे 2 बड़े पेड़ हैं, ह्यूज ट्रीज. ओके. और कृष्णा क्या करते हैं? ही क्रॉल्स विद दैट उखल. उखल इटसेल्फ इज अ वेरी हेवी थिंग एंड कृष्णा इज अ स्मॉल बेबी बॉय. ही इज क्रॉलिंग विद दैट उखल को खींच के वो 2 पेड़ के बीच में जाते हैं और उखल को उसमें फंसाते हैं और एक तक हल्का सा झटका देते हैं. एंड दैट एंटायर ट्रीज, यमला अर्जुन ट्रीज है, द ह्यूज ट्रीज फॉल डाउन. थाड़ करके आवाज आ रहा है, गिर गए नीचे. और गिर जाते तो उसमें से 2
देवता प्रकट हो जाते हैं। इन देवताओं का क्या नाम है, कौन बताएगा? मणिग्रीवा और नलकुबेरा। वो जब भी पेड़ गिर जाते हैं, वो पेड़ में से दो एंटिटीज बाहर निकलते हैं, दो देवता बाहर निकलते हैं, डेमीगॉड्स बाहर निकलते हैं। एक का नाम है मणिग्रीवा, दूसरे का नाम है नलकुबेरा। अभी डेमीगॉड्स में कुबेर नाम के एक डेमीगॉड है। कुबेर कौन है? ट्रेजरर ऑफ द डेमीगॉड, वो पैसा संभालते हैं। उनके पुत्र हुए मणिग्रीवा और नलकुबेर। तो बड़े बड़े प्रेस्टिजियस फैमिली में बॉर्न हुए। When you are born in a very very wealthy family, you have lots of fame, you have lots of wealth, you are good looking, you are strong. Then what happens when you have all these qualities? What happens? Pride comes, ego comes, and because of this ego, this Nalagriva and Manigriva and Nalakuvera, in that ego they were enjoying in the heavenly ponds along with various apsaras there. They were enjoying, and it happened that our Narad Muni, he happened to pass by. Now Narad Muni जहाँ से भी जाते हैं वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। बट नारद मुनि जिसको भी इंटरसेप्ट करते हैं, नारद मुनि जिसके भी रास्ते में आते हैं, उसको भगवान कृष्ण जरूर मिलते हैं। ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स है। बट सो नारद मुनि आए, तो पौंड में इमेजिन कीजिए, मणिग्रीवा नलकुबेरा पौंड में अनेक अप्सराओं के साथ उनका पास टाइम चल रहा है। कपड़े नहीं है उनके पौंड में, ऐसे ही है, नंगा अवस्था में है। तो नारद मुनि वहां से आ रहे हैं, तो जो बाकी अप्सराएं हैं, वो बाकी जो लेडीज है वहां पे, वो नारद मुनि को देख के, अरे सन्यासी आ रहे हैं, देन दे इमीडिएटली कवर देमसेल्फ अप and with prostrated obeisances, they feel his presence, and they just say sorry, we are in this state, and they go away from there. But Manigriva and Nalakuvera, ego है, बड़े बाप का बेटा हूँ, कौन है, क्या है, and they ignore a sannyasi like नारद मुनि। तो नारद मुनि sees कि अरे तुमको इतना अच्छा जन्म मिला है, तुमको भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, ऐसे इसमें वेस्ट कर रहे हो टाइम, और तुमको थोड़ा भी सेंस नहीं है कि कैसे एक साधु के साथ बिहेव किया जाता है। नारद मुनि कर्सेस देम, तुमको नग्न अवस्था में रहना है, पेड़ बन जाओ। कोई भी ट्रीज देखे, कपड़े ही नहीं होते, ऐसे ही खड़ा रहना पड़ता है ट्रीज, कितने सालों तक, बहुत सालों तक ऐसे ही खड़ा रहना पड़ता है। हमने श्लोका पढ़ा था, जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति पक्षी नाम 10 लक्षाणाम। ये देयर आर 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ ना, ये श्लोका याद होना चाहिए हमारे को। कभी भक्ति करने का मूड नहीं करे तो ये श्लोका याद करो, ऑटोमेटिक भक्ति में, ऑटोमेटिक जपा में लग जाओगे कि 84 लाख योनि में अगली योनि कौन सी चाहिए, चॉइस दिया है। जलजा नवलक्षाणी, जलजा मतलब पानी, पानी में नवलक्षाणी मतलब 9 लाख स्पीशीज ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति, स्थावर मतलब क्या, फिक्स्ड, स्थिर। फिक्स्ड कौन होते हैं, ट्रीज, प्लांट्स, ये सब फिक्स्ड होते हैं। तो ऐसे 10 लाख अलग अलग पेड़ों की योनियां है। तो नारद मुनि ने उनको पेड़ों की योनि में ढकल दिया, जाओ। बट एक उनको ब्लेसिंग दिया कि तुमको तुम्हारा पूर्व जन्म याद रहेगा। तो नलकुबेर और मणिग्रीव बड़े बहुत, ये तो बहुत गड़बड़ काम हो गया, सॉरी बहुत, उन्होंने फिर क्षमा याचना करी। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो, पेड़ तो तुम बनोगे, तुमको पिछला याद भी रहेगा, बट तुम ऐसे जगह पेड़ बनोगे जहां तुमको भगवान की बाल लीलाओं का आप फेस टू फेस, you can see everything that is happening, but that will happen after many years. So they were trees for 100 celestial years, 100 देवताओं के years का they were trees, okay? So ऐसे उनको श्राप मिला, but it was a वरदान, and then he said the Lord will himself meet you, और आपको मुक्ति दिलाएंगे। तो नारद मुनि का वो फिर कृष्ण को याद आ गया और उन्होंने ये लीला करी और ये फ्री हो गए ऐसे। भगवान परित्राणाय साधु नाम, कि अपने डिवोटीज के लिए भी भगवान प्रथम आते हैं ऐसे। तो जब भी धड़ाम से आवाज हुई तो
सारे लोग फिर नंद बाबा महाशय सब भाग के क्या हुआ, और देखा ये सारे दो बड़े पेड़ गिर गए हैं और कृष्ण बीच में उखल के साथ बंधे हुए हैं, और दूसरे गोपा भी थे। तो दूसरे गोपा बता रहे हैं कि हमने देखा इसको, ये पेड़ है ना, इस कृष्ण ने बीच में जाके गिरा दिए। एंड नंद बाबा इसलिए पागल हो गए हो, तो छोटा है, तुम लोग भी पागल हो गए हो, इतने बड़े पेड़ ऐसे कैसे गिरा दिए इसने। सो उनको हमेशा लगता था कि कोई कंस ने किसी को भेजा है और कोई यहाँ पे मायावी शक्ति है जो ये सब कुछ कर रही है। तो एनीवे सो नंद बाबा आए, उन्होंने कृष्ण को उखल से बांधा था, उनको छुड़ाया, और यशोदा माँ भी वहाँ पे आई, बट कृष्ण यशोदा माँ के पास जाने से मना कर रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, इनके इन्होंने मुझे बांध दिया था, आई एम नॉट गोइंग। एंड देन यशोदा स्टार्टेड क्राइंग, एंड देन कृष्ण देन इवेंचुअली वेंट टू हर, and then she again started feeding him milk. So this started with the katha started with the milk pastime, and it ended with the milk pastime. So this happened in this month of Kartik. तो दामोदर को हम जो दीप दान करते हैं, जो फोटो देख रहे हैं, वो यशोदा है, कृष्ण है, पीछे उखल है। हम इस लीला को मध्य रखते हुए हम दीप दान करते हैं। So today we will now sing the Damodar Ashtakam. So उसमें maybe next time we will understand the meaning of Damodar Ashtakam. Okay. So I think I'm ready for the Damodar Ashtakam. किधर है उनको बोलना, ऋषभानु सुता को, can you let her know that I'm ready for the Damodar Ashtakam. दीपदान के लिए बाकी सब तैयारी कर लो. Keep all the diyas ready. जब परिक्रमा in this month of Kartik, people do परिक्रमा. अलग अलग गांव है यहाँ पे, बरसाना है बीच में, रामवन है, ऐसे अनेक गांव है। So if you happen to go to Vrindavan, then you should do this परिक्रमा. Okay? ये पुराना मैप है ओरिजिनल वृंदावन का, हाउ ये कैसे कैसे क्या क्या है, तो आप कर सकते हो। ओके, सो नाउ वी विल डू दीपदान। सो वी विल सिंग वेरी सुहेल प्रभु, हाँ, तो वी विल सिंग दामोदर अष्टकम। ओके, एंड देन कैन यू पास दैट ऑन प्लीज, ही इज गिविंग इट, इसको पास करें आगे आगे थोड़ा थोड़ा करके। सो I want a group of people, to come ahead and then do together. एक करेगा तो समय जाएगा दीपदान के लिए, तो एक फैमिली आके करे, या तो एक ग्रुप आके दिया अर्पित करे भगवान को और वापस जाके पीछे बैठ जाए, और वो दिए के अंदर की बात यहीं पे कहीं पे उन्होंने अरेंजमेंट किया होगा तो उसमें डाले। ओके, सो वी विल स्पेंड 15 to 20 minutes. Can you give it the whole thing? Can you give it to me? Very good. Okay. So these things are to be kept here. Okay. Last time मैंने आपको दिया था घर में लेके जाने के लिए. So these things have to be kept here so that every time we meet, we can use this for दामोदर अष्टकम. Okay. सबके पास दामोदर अष्टकम है घर में? हाँ? ठीक है. So we can. आपके सामने.